Hello 8th class, this is your math subject children. Today we are going to start the new exercise of math 3.D. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some properties of square root. First, square root of product of integers. If a and b are any two positive numbers, then square root of ab equal to square root of a multiply square root of b. And square root of a upon b equal to square root of a upon square root of b. Now second point, square root of a rational number. The square root of a rational number a upon b is a rational number x upon y, which when multiplied by itself gives the given number a upon b. Thus x upon y equal to square root of a upon b of x upon y का whole square equal to a upon b. See the example, 2 upon 3 का square equal to 4 upon 9, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, square root of 4 upon 9 equal to 2 upon 3. Now third point, square root of decimals. To find the square root of the given decimal number, make the number of decimal place even by affixing a 0 on the extreme right if necessary. Now place the bar on the integer part of the number in the usual manner and place bar on the decimal part on every pair of digits beginning with the first decimal place. Now proceeding in the same manner as in the long division method of square root, taking care to put the decimal point in the quotient as soon as the integer part of the decimal number is finished. So see the example, a part is 22.09. So firstly हम 4 का स्क्वायर करेंगे, so 16, 22 में 16 लेस कर देंगे, so 6. नाउ 09 हम उतार लेंगे ऊपर से 1 डिजिट. ओके, नाउ यहाँ पर हमारा डेसिमल पुट करेंगे 4 के बाद. नाउ 4 2 जा 8 हमारा होता है. ओके, नाउ 8 को हम किस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो 7 से. सो 87 को 7 से मल्टीप्लाई किया, सो 609. नाउ लेस करेंगे, सो 0. सो आवर आंसर इज 4.7. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. So if the square root of the given number is to be computed correct to n decimal places, then use the method of long division to find the square root up to n plus 1 places. Finally round off the square root up to n decimal places. So हमें एक एग्जाम्पल देखेंगे. 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम 1 का स्क्वायर करेंगे, सो 1. नाउ लेस करेंगे, आवर आंसर इज 2. नाउ ऊपर से हमने 1 डिजिट उतार ली, मीन्स 2 0 उतारी है यहाँ पर. उसके लिए हमने डेसिमल लगाया है, अगेन हमने ज़ीरोज़ लगाई हैं. ओके, नाउ जो हमारा कोशिएंट है उसमें भी हम डेसिमल पुट करेंगे. नाउ यहाँ पर हमारा जो डिवीज़र हो गया वो हो गया 2. अब इसको हम किस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7. सो 27 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 189. ओके, नाउ लेस करेंगे, सो 11 आ जाएगा. नाउ अगेन हम 2 ज़ीरोज़ उतार लेंगे, सो ये हमारा जाएगा 3 पे. सो 343 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 1029. नाउ अगेन सेम स्टेप, लेस करेंगे, अगेन ज़ीरो उतार लेंगे ऊपर से. सो हमारा आंसर आ जाएगा 1.732. ओके, now this is up to 3 decimal places. Now square root of 3 equal to 1.73 up to 2 decimal places. This is our answer. Now our exercise start 3.D. A part is select the correct answer. First question, the value of square root of 243 upon 867 is. तो फर्स्टली हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17. ओके, नाउ 3 से 3 कट हो गया, सो आवर न्यूमिनेटर आर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और डिनोमिनेटर 17 मल्टीप्लाई 17. नाउ स्क्वायर रूट के लिए हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे एंड ग्रुपिंग के बाद 1 प्राइम नंबर हम जो है बाहर ले लेंगे. सो 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 17 equal to 9 upon 17 is our answer. So C option is correct.
Now question number 2, see in your book the value of square root of 2/3 will be approximately. So हम इसको डिवाइड करेंगे एंड स्क्वायर रूट करेंगे. So our answer is 0.82. C option is correct. Okay. Now question number 3, the value of square root of 80 multiply 20 is. So firstly prime factors करेंगे. So 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 2 multiply 2. Okay. Now square root करेंगे. So grouping करने के बाद हम grouping में से 1 prime number बाहर ले लेंगे. So 2 multiply 2 multiply 5 multiply 2. Now multiply करेंगे. So 40 is our answer. So A option is correct. Now question number 4, see in your book, giving the square root of 4096 equal to 64 हमें दिया हुआ है बेटा. हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 4096 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40.96 इज. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली इनके फैक्टर्स करेंगे. सो 64 मल्टीप्लाई 64 हमें गिवन है. देन प्लस जो हमारा सेकंड स्क्वायर रूट है बेटा उसका हम फैक्टर करेंगे. सो 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 हो जाएगा. नाउ ग्रुपिंग करेंगे. सो हमारा बाहर आ जाएगा बेटा 64 प्लस 6.4. सो आवर आंसर इज 70.4. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. Now start B part, solve the following. First question, find the square root of each of the following. A part is square root of 16 multiply 49. So firstly हम इनके prime factors find करेंगे. So 16 के prime factors are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and 49 के factors are 7 multiply 7. Okay. Now grouping करके हम factors बाहर निकालेंगे. So 2 multiply 2 multiply 7 equal to 28 is our answer. Now C part, square root of 2 is to 14 upon 25. So firstly change into simple fraction. So square root of 64 upon 25. Now prime factors करेंगे. देन ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग करने के बाद हमारा आ जाएगा बेटा 2 multiply 2 multiply 2 upon 5. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 8 upon 5. नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो 1:3/5 is our answer. Similarly you have to solve B and D part of this question. Now question 2, see in your book, find the square root of each of the following. A part is 0.0256. So firstly इनकी grouping करेंगे. 56 is one group and 02 is second group. So firstly हम इनको divide करने के लिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट हम डेसिमल लगाएंगे फर्स्टली. देन 1 का स्क्वायर हम करेंगे. सो 02 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 01. ओके. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 1. नाउ 56 हमने उतार लिया 1 डिजिट. ओके. नाउ 26 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 156. सो लेस करके हमारा 0 आगे रिमाइंडर. ओके. नाउ आवर आंसर इज 0.16. ओके. नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 6432.04. सो फर्स्टली इनकी ग्रुपिंग करेंगे. नाउ 8 का स्क्वायर हम करेंगे 64. देन 32 हम निकाल लेंगे. लेस किया हमारा 0 आ गया. 32 हमने ऊपर से उतारा. सो यहाँ पर हमने 1 डिजिट और उतारी है. सो हम हमारा जो क्वेश्चन हो गया उसमें एक 0 लग गई है. नाउ हम 1602 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आवर आंसर इज 3204. नाउ लेस करेंगे 0. सो आवर आंसर इज 80.2. ओके. Similarly, you have to solve C and D part of this question. Now question number 3, see in your book, simplify the following. A part is square root of 5.0625 plus square root of 506.25. So इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर रूट है उसके हम डेसिमल हटाएंगे. सो डेसिमल हटाने के लिए 10,000 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. एंड सेकंड जो हमारा स्क्वायर रूट है उसका भी हम डेसिमल हटाएंगे. सो 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. नाउ हमारा जो फर्स्ट स्क्वायर रूट आ गया बेटा वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50,625 अपॉन 10,000. देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50,625 अपॉन 100. नाउ इसके हम स्क्वायर रूट कर देंगे. सो 225 अपॉन 100 प्लस 225 अपॉन 10. नाउ चेंज इनटू डेसिमल. So 2.25 plus 22.5. Now प्लस करेंगे. So our answer is 24.75. ओके. नीचे आपको बेटा इसके स्क्वायर रूट करके दिखाया हुआ है यहाँ पर. Now D part.
square root of 225 upon 729 minus square root of 25 upon 144 divide square root of 16 upon 81. So firstly find the prime factors of 225 are 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 अपॉन 729 के फैक्टर्स हैं 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. नाउ माइनस हम करेंगे देन 25 के फैक्टर्स आर 5 multiply 5 एंड 144 के फैक्टर्स आर 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. ओके नाउ डिवाइड करेंगे 16 के फैक्टर प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे एंड 81 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. नाउ स्क्वायर रूट हम करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 3 multiply 5 अपॉन 3 multiply 3 multiply 3 माइनस 5 अपॉन 2 multiply 2 multiply 3 देन डिवाइड 2 multiply 2 अपॉन 3 multiply 3. ओके नाउ इनको हम कट करेंगे सो हमारा आ जाएगा 5 अपॉन 3 multiply 3 माइनस 5 अपॉन 2 multiply 2 multiply 3 देन डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 4 अपॉन 9 हमारा आ जाएगा. नाउ इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप 5 अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 12 देन डिवाइड 4 अपॉन 9. नाउ जो हमारा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे सो 20 माइनस 15 अपॉन 36 डिवाइड 4 अपॉन 9 सो 5 अपॉन 5 अपॉन 36 डिवाइड 4 अपॉन 9. नाउ डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे एंड 4 अपॉन 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9 अपॉन 4 देन कट करेंगे सो आवर आंसर इज 5 अपॉन 16. Now similarly you have to solve other part of this question. Now question number 4, see in your book find the square root of each of the following numbers up to 2 places of decimal. So A part is 5. So 5 का हमें square root find करना है 2 decimal तक. तो उसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्टली 2 का स्क्वायर करेंगे सो 4. नाउ लेस करेंगे 1. तो यहाँ पर हमें डेसिमल पुट करना है सो हम क्वोशिएंट में भी डेसिमल लगाएंगे. नाउ 2 zeros हम पुट करेंगे सो नीचे हमारा जो डिविजर हो गया वो हो गया डिविडेंट हो गया वो हो गया 100. सो 42 को हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो 84. नाउ लेस करेंगे 16 अगेन हम 2 0 उतार लेंगे. नाउ 443 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1329. नाउ सेम स्टेप लेस करेंगे हम सो अगेन 0 उतारेंगे सो 8863 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 26,589. नाउ लेस करेंगे सो 511. सो आवर क्वोशिएंट इज 2.233. सो दिस नंबर इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके नाउ स्क्वायर रूट 5 हम करेंगे 2.23 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर डी पार्ट आप देखेंगे बेटा. डी पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 74.9. सो हम 74.9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल्स तक. सो फर्स्टली हम 8 का स्क्वायर करेंगे सो 64. ओके नाउ लेस करेंगे 10 अगेन हम डेसिमल पुट करेंगे बेटा और 90 हमने ये बना लिया. ओके नाउ हम क्वोशिएंट में भी डेसिमल पुट करेंगे 166 को 6 से मल्टीप्लाई किया सो आवर आंसर 996. नाउ लेस करेंगे सो 9400. ओके नाउ सेम स्टेप हम यूज़ करते हुए अपने 3 डेसिमल तक हम आंसर फाइंड करेंगे. सो 8.654 हमारा क्वोशिएंट आ गया. सो दिस इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस और स्क्वायर रूट ऑफ 74.9 इक्वल टू 8.65 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. सो दिस इज आवर आंसर. Similarly, you have to solve B and C part of this question. Now question number 5, see in your book. The area of a square plot is 101:1 by 400 meter square. Find the length of one side of the plot. So इसके लिए हम क्या करेंगे area of square plot equal to 101 1 by 400 meter square is given. So side square equal to हम इसका मिक्स सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा 40,401 अपॉन 400 मीटर स्क्वायर. ओके नाउ स्क्वायर रूट करेंगे इसका हम. सो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट करके दिखाया हुआ है. सो हमारी साइड आ जाएगी बेटा 10.05 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, see in your book the area of a square field is equal to the area of rectangular field with side 24 meter and 15 meter.
find the approximate length of the side of the square. So firstly, area of rectangular field equal to 24 multiply 15. So 360 meter square. Okay. Now area of square field equal to 360 meter square. So formula is side square equal to 360. नाउ साइड हम फाइंड करेंगे, सो 360 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाया हुआ है. सो आवर आंसर इज 18.97 मीटर. अप्रोक्सीमेट हमें आंसर फाइंड करना है. सो आवर आंसर इज 19 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सी इन योर बुक, फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 2,51,953. So according to the question, हमने let the number is n, so n multiply n equal to 2,51,953. so n square equal to 2,51,953. so n find करने के लिए हम इसका square root कर देंगे. so our answer is 501.95. okay, now children, your exercise and chapter is over. Now your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.